Hi everyone, very good afternoon and welcome back to CGB Mentors. So today we are going to do the review of May 27th newspaper, that is for Business Line, right? And before I start anything, thank you so much for your valuable response. It matters to us too much, so thank you so much, and please keep watching this video, and yeah, you can share your views too. So now let us start the review, and we have some important news today. Some of the news, they are in a continuation of the previous classes, and some of the news are new on the paper today. So let us see that. See, number one we have is India unveils high resolution Bharat forecast system. This is just a small news item where you have to see that there has been a new system, weather information system, that has been brought in. Earlier we were having a system that was accurate, was predicting the weather updates for the 4 to 5 panchayats together, but now we can do the more precise weather updates up to 1 to 2 panchayats, right? So we can give the more focused weather predictions, and this is what this particular system talks about. Bharat forecast system has been developed by the IITM, that is Institute of Tropical Meteorology, Pune, and then handed over to, of course, IMD, that is Indian Meteorological Department. It is important, right? This initiative is good. You can use it in your writings, right? In your essay items, that what are the new steps that have been taken up to deal with the climate change in particular. So yes. Now, next news item that I haven't highlighted but remains important. So that is SEBI limits equity derivative expiry to Tuesday, Thursday for all bourses. Now over here, अगर आप पिछले कुछ दिनों से पिछले 2-3 दिनों से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपको इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि यहाँ हो क्या रहा है. Again, in 2-3 lines I'd like to explain this. So what is happening is यहाँ पे हम थोड़ा सा एक write up use कर लेते हैं so that it's easier for us to understand. So we know that there are indexes on the stock exchange. Indexes मतलब on an average, if there are 50 companies on Nifty, अगर Nifty में 50 companies हैं तो हमने उनका एक average price निकाला, उनके stock prices का एक average निकाला और इससे हमने एक इंडेक्स बना दिया जिसका नाम हमने दिया निफ्टी 50. अब इसी तरीके के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है. जैसे हमने निफ्टी 50 ले लिया, देन वी हैव निफ्टी बैंक, राइट. बहुत सारे इंडेक्सेस हैं आपकी निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी. सेंसेक्स हो गया आपका, राइट, लाइक दैट. सो कुछ इंडेक्सेस बीएसई के हैं, कुछ इंडेक्सेस एनएसई के हैं. यहाँ पे हो क्या रहा है? सो नाउ वी हैव द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन दीज इंडेक्सेस. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? हम इनकी प्राइसेस पे एक स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं, एक बेट लगा रहे हैं. इसका मतलब सपोज निफ्टी 50 का वैल्यू 19,500 पे मैंने खरीदा. नाउ आई वांट कि अगर ये 19,700 चला जाएगा तो मुझे इसके डिफरेंस से प्रॉफिट हो जाएगा. दिस इज व्हाट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट mean, right? This is called as index derivatives. Index derivative मतलब एक asset है जिसको हम index कह रहे हैं. ये index क्या हो रहा है? This is the average prices of the stocks which are included in this index. Nifty 50, top 50 companies which are there on the NSE. इसको हम Nifty 50 कहते हैं. So अभी हमारा हो गया index derivative. अब इससे पहले क्या हो रहा था? ये इन exchanges ने, आप ये एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. मैंने आपको कहा कि ठीक है, आज निफ्टी 50 की वैल्यू 19,500 है. आप मुझे एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए. एक हफ्ते में आई एक्सपेक्ट कि मैं इस निफ्टी 50 के जो भी हमारे यूनिट्स हैं, मैं 50 यूनिट्स खरीद लूंगी 19,700 पे. मैंने क्या कहा? मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं कि मैं एक हफ्ते बाद 50 यूनिट्स निफ्टी 50 की खरीद लूंगी 19,700 पे. मतलब मैं आगे आने वाले कल की बात कर रही हूं जहां प्राइस डिसाइडेड है, एक्सपायरी डिसाइडेड है, राइट. दोनों चीजें आपकी डिसाइडेड है. अब इसको हमने कहा वीकली एक्सपायरी. इसी तरीके से मंथली एक्सपायरी भी होती है. तो अब इससे पहले हो क्या रहा था कि एनएसई बीएसई दोनों ने अपने बहुत सारे इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट थे
और इसको वो लोग वीकली एक्सपायर कर रहे थे। नाउ वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, देयर इज टू मच स्पेक्यूलेशन, इतनी ट्रेडिंग होती है एंड देयर आर हायर चांसेस दैट द रिटेल इन्वेस्टर्स वुड लूज देयर मनी। अब सेबी का रोल क्या है यहाँ पे, मार्केट में सेबी का रोल यही है कि पीपल लाइक यू एंड मी, वी शुड नॉट लूज द मनी that we have hard earned in the stock market just like that। ऐसे ही हम अपना पैसा खो ना दें, ये सेबी का काम है। तो सेबी ने कहा कि देखो, सिर्फ एक ही इंडेक्स डेरिवेटिव को आप वीकली एक्सपायरी रखोगे, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी करो, ठीक है, सो दैट मार्केट में स्पेक्यूलेशन कम हो। तो चलो ठीक है भाई, वीकली एक्सपायरी तो सेटल हो गया कि आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वीकली एक्सपायर होगा। अब आप चूज कर लो कि वो आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद सेबी ने कहा कि हफ्ते में बस 2 ही दिन एक्सपायरी होगी, ये नहीं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट मंडे को एक्सपायर हो रहा है, कोई वेडनेसडे को एक्सपायर हो रहा है, कोई फ्राइडे को एक्सपायर हो रहा है, नहीं, वी डू नॉट वांट टू मच वोलैटिलिटी, देयर विल बी 2 days, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो अब बेचारा एनएससी, अभी तक उसकी एक्सपायरी थर्सडे थी और बीएससी की क्या थी, ट्यूसडे। अब इससे क्या होता था, बीएससी को फायदा हो रहा होता है, राइट, क्योंकि पहले उनकी एक्सपायरी आती है। तो एनएससी ने कहा है कि जी आप जो बोल रहे हैं कि बस 2 ही दिन एक्सपायरी होगी, ये सेबी का सर्कुलर है, हम आपकी बात मान लेते हैं, बट NSE wants to shift its expiry from Thursday to Tuesday itself, कि हम भी Tuesday को ही शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रपोजल NSE ने दिया है, अब ये प्रपोजल सेबी एक्सेप्ट करता है या नहीं, दैट इज द फर्दर स्टोरी दैट विल कवर इन द अपकमिंग डेज, जैसा सेबी का एक्सेप्टेंस आएगा इस पे। बट राइट नाउ दिस इज द होल स्टोरी एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट व्हाट डू वी मीन बाय इंडेक्सेस। ठीक है जी, पहली स्टोरी हमारी कवर हो गई है, अब हम आगे चलेंगे। Just wait. Now in the upcoming news items, 2-3 न्यूज आइटम है जो आज टैक्सेशन पर आए हैं आपके लिए, तो वो हम देखेंगे जो कि जरूरी है। अब बड़ा ही थोड़ा सा कॉमेडी वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, सी दिस, India will feel the pinch of US beautiful levy, right? So there is a tax, ठीक है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बात किया था। वो आपके टैक्सेस क्या हैं, यहाँ पे इस बारे में बात की गई कि यूएस जो है वो रेमिटेंस का एक टैक्स इम्पोज करना चाहता है, जो भी रेमिटेंसेस यूएस से बाकी देशों में भेजी जा रही हैं। इसको इन्होंने एक नाम दिया वन बिग ब्यूटीफुल बिल, वेयर दे वांट कि ठीक है अब हम रेमिटेंसेस पे टैक्स इम्पोज करेंगे। तो ये जो आपका एडिटोरियल है वो इस बारे में बात कर रहा है that it is not good for us. Why it is not good for us? The problem over here is कि इस situation में देखो, remittances मैंने आपको उस दिन भी बताया था that 28% of our remittances have come from United States। तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? रुपये की वैल्यू मेंटेन करने के लिए, इसके बाद हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो हमारे यहाँ रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम भी आती है इन रेमिटेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केरला की बात करें तो काफी सारे रेमिटेंसेस वहां पे आते हैं जो कि लोकल इकोनॉमी को चला रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम यूएस बट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है कि ऑलरेडी इफ समबडी वांट्स टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम यूएस टू इंडिया 4 to 5% इज चार्ज ऑन द रेमिटेंसेज। अब अगर आप उस पर 3.5% एक्स्ट्रा लगा दोगे सो यू आर मेकिंग इट 8.5%, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हो, 8.5% बना रहे हो। सो isn't it this bad, राइट? ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आगे चल के अगर रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी सो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज टॉक्ड अबाउट, ठीक है। See this कि with tax giveaways likely to cost $4.6 trillion over the next 10 years, US गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि उन्होंने इतने सारे टैक्स कट्स दे दिए हैं कि पैसा तो उनके पास आ नहीं रहा है, तो अब ये पैसा बनाया कहाँ से जाएगा, रेमिटेंसेस पे टैक्स चार्ज करने के लिए, ठीक है। मार्च 2025 में आरबीआई पेपर ने बताया कि यूएस वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस कंट्रीब्यूटिंग 27.7% ऑफ द रेमिटेंसेस इन इंडिया, ठीक है। नाउ ओवर हियर
यहाँ पे कुछ वैल्यू सम्स की बात की गई है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एज आई हैव टोल्ड यू कि करेंसी कन्वर्जन का कॉस्ट ऑलरेडी 4 to 5% लग जाता है एंड 3.5% वुड बी ऑन टॉप ऑफ इट. सो फाइनली अब अगर यहाँ पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं सो इट वुड लीड टू द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स. ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? हवाला ट्रांजैक्शंस विल गो, राइट. बेसिकली पीपल वुड लाइक टू ट्रांसफर थ्रू क्रिप्टो करेंसी रूट, और इस तरीके के रूट्स का ज्यादा हम यूज करेंगे. वाई? बिकॉज फॉर्मल रूट से व्हेन यू विल इम्पोज अ टैक्स अप टू लेट से 8%, 5% of currency conversion plus 3.5%. So if you will impose up to 8%, people would not go through formal route. वो क्या करेंगे? They'll see the alternative mechanism of transferring money, and obviously this will give rise to black money. ठीक है. So ये कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस की गई. अब हमारे पास अगला आर्टिकल है ट्रम्प टैरिफ थ्रेटन इंडियाज रिन्यूएबल पुश. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके बारे में देखते हैं हम. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. See, so in this situation, now you know that Trump wants to impose tariff. If one country is imposing tariff on them, he wants to do the reciprocal tariff. अब यहाँ पे कुछ इंडिया की सिचुएशन के बारे में बात की गई. In the last fiscal year, if you see the renewable energy capacity that we have in India right now as on 2025, it is some 220 gigawatts, right? This is what the India has achieved, and out of this 30 gigawatts has achieved in the last financial year itself. ठीक है, पिछले साल ही हमने इतना अचीव किया है. Obviously we need the renewable push, और यहाँ पे US या फिर ऐसी जो developed economies हैं who have been the carbon emitter from so many time immemorial, they should contribute more. but ज़्यादा contribute करने के बजाय US यहाँ पे क्या कर रहा है? US is imposing टैक्सेस. ठीक है, टैरिफ्स. अगर हम वहां पर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया जो है 98% सोलर मॉड्यूल्स जो इंडिया में जो डेवलप किए जाते हैं दे आर एक्सपोर्टेड टू यूएस. ठीक है, वो यूएस को एक्सपोर्ट किए जाते हैं. अब यूएस इज इम्पोजिंग समवेयर अराउंड 26% to 27% टैरिफ ऑन सच सोलर मॉड्यूल्स. अब अगर इस पे इतना टैरिफ लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, राइट. नंबर वन थिंग. सो आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो वाइप ऑफ कर दिया. नेक्स्ट थिंग इज, इससे क्या होगा? द चाइनीज डेवलपर्स और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स दे विल गेन एक्सेस इन द इंडियन मार्केट. उनको कैसे एक्सेस मिल जाएगा? दे हैव गॉट द गवर्नमेंट सपोर्ट, दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब उनका फैक्ट्री प्रोडक्शन वगैरह इतना अच्छे स्केल पे चलता है बट दैट दे कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट. ठीक है, तो वो हमारे इंडियन मार्केट्स को इन मॉड्यूल्स से फ्लड कर देंगे. मतलब कि चाइना से जो है इस तरीके के जो आपके सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में जो भी आपके इक्विपमेंट्स काम आते हैं वो सब इंडिया में डंप कर दिए जाएंगे. पहली चीज ये. इसके अलावा देयर आर सम रॉ मटेरियल्स दैट वी नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज इक्विपमेंट्स दैट आर सिंगल हैंडेडली व्हाट यू कैन से मैनेज्ड बाय चाइना. ठीक है, जैसे कि अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें जिसकी हमें जरूरत है, 90% प्रोसेसिंग इज डन इन चाइना. सम 67% प्रोडक्शन इज डन इन चाइना और 90% प्रोसेसिंग भी चाइना में होती है. तो अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए यू आर डिपेंडेंट ऑन चाइना. ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी हमारे ऊपर क्या होगा? प्रेशर आ जाएगा. पहली चीज. अब दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है दैट ट्रेड टेंशंस आर राइट नाउ गोइंग ऑन. ठीक है, यूएस वांट्स टू हैव ऑल्टरनेटिव मार्केट्स अदर देन चाइना, राइट. यूएस वांट्स टू डिक्रीज इट इन डिपेंडेंस ऑन चाइना. तो जब आप अपनी चाइना पे डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम यू आर हार्मिंग योर पार्टनर्स बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन देम. सो दिस इज हिपोक्रेसी, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट. अब ये पूरा हमने स्टोरी समझ लिया. नाउ लेट्स रीड सम फैक्ट्स ओवर हियर. देखो, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 220 गीगावाट्स है बाय मार्च 2025. नाउ दिस इज द फैक्ट विच यू कैन कोट ऑन मल्टीपल what you can say places. Next 30 gigawatts we have added in just last fiscal. ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो सोलर मॉड्यूल्स हैं 98% हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं बट
26% का अगर आप टैरिफ लगा दोगे इंडियन सोलर मॉड्यूल्स में, तो जो हमारी ग्रोथ है वो पहली बात तो कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसको $223 बिलियन का सपोर्ट चाहिए। अभी तो हमें पैसा चाहिए, आप हमारा एक्सपोर्ट कम कर दोगे तो हमें पैसा कहां से मिलेगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हम जो इंडिया की डिपेंडेंस है वो चाइना पे है काफी सारी चीजों के लिए। लाइक इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स हेविली ऑन इंपोर्ट्स, नियरली 18% ऑफ पॉलीसिलिकॉन कम्स फ्रॉम चाइना। 80% पॉलीसिलिकॉन हमारा चाइना से आता है। 69% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ आउटपुट एंड 90% ऑफ production processing of rare earth elements is done by China. So you see, we have to develop our industry, we have to reduce the import dependence, but we cannot do it if the trade tariffs would be imposed like this. Apart from that, there are some problems Indian economy में भी। Indian economy में क्या problems है? Like there have been number of projects, solar energy projects, which has been shelved. क्यों shelve किए गए? Because land related approvals नहीं मिल रही थी, ठीक है, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा आपने जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट मतलब कि अगर हम एक रिन्यूएबल प्लांट बना रहे हैं तो नाउ देयर नीड्स टू बी एन एग्रीमेंट कि अगर इस प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वो हम कब तक बेच सकते हैं। 25 साल था, आपने उसको 12 से 15 साल कर दिया। सो देयर आर सम मोर प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू सॉल्व टू प्रोटेक्ट योर इंडस्ट्री, एंड दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। नाउ मूविंग अहेड and talking about this article which talks about US as tax heaven, ठीक है। बहुत बार you have heard about black money, ठीक है। तो what is this all about? Basically, black money is when I have earned an income, right? But I don't want to pay tax on it and I want to hide it. So I reroute it through tax havens. टैक्स हेवंस जैसे कि दुबई, ठीक है, जैसे कि आपके मॉरिशस हो गया, फाइन। सो दीज नेशंस व्हाट दे जनरली डू इज वो आपकी टैक्स डिटेल्स को या फिर जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करते। पहली बात तो शेयर नहीं करते, और दूसरी चीज द टैक्सेस इन दीज कंट्रीज आर टू लेस दैट कंपनीज वांट्स टू सेट अप देयर हेड ऑफिसेज ओवर देयर, कंपनी वांट्स टू हैंडल देयर ऑपरेशंस फ्रॉम देयर सो दैट आगे चल के टैक्स ना देना पड़े। अब हम यूएस की स्टोरी सुनते हैं। तो यूएस ने क्या किया है, earlier corporate taxes in US was somewhere around 35% federally मतलब पूरे नेशनल बेसिस पे। इसको 35% से इन्होंने कम करके 21% कर दिया। अभी एवरेज टैक्सेशन क्या है, समवेयर अराउंड 25.6%, ये इनका एवरेज टैक्सेशन है कॉर्पोरेट्स के लिए, ठीक है भाई। अब दूसरी चीज ये है कि जो कॉर्पोरेट से इनको इनकम आती है दैट इज समवेयर अराउंड 1.8% ऑफ जीडीपी, वेरी लेस, राइट। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टैक्स हेवंस, we talk about Switzerland, we talk about Dubai, we talk about Mauritius, but we forget to talk about US and UK. They are also tax havens, ठीक है। इन लोगों ने भी, इनकी भी कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जैसे यूके के बारे में अगर बात करें तो इनके पास में काफी सारे आइलैंड्स हैं, right, which comes under their control. अब इन islands पे obviously Britishers का control है, so they'll be taken under UK itself, right? And when the companies open their offices over there, they get the benefit कि ठीक है taxes कम देने पड़ेंगे, details share नहीं होंगी, but this is in a way a wrong practice. आप taxes कम कर रहे हैं, fine, ठीक है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन जब शेयर नहीं करते हैं तो यू आर इम्पैक्टिंग द डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू अ डेटा ओवर हियर। In some previous years, approximately $1 trillion have been transferred by corporates from here and there, and tax has been paid on them very less, right? Obviously that's a huge figure and that has impacted developing countries ability. जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, इंडिया में एक कंपनी है, अब इसको टैक्स देना चाहिए था, इसने नहीं दिया, इसने अपने आप को मॉरिशस में रजिस्टर करा लिया, वहां पे कम टैक्स दिया, इंडिया में बस लॉसेस दिखाए। ये ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, सब्सिडरीज के थ्रू। आई हैव अ कंपनी, आई हैव इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, 100% इन्वेस्टमेंट, एंड वी डू द ट्रांजैक्शन अमंग आवरसेल्फ। मैंने उनको कोई सामान दिया तो मैंने 100 रुपए की चीज के लिए 200 रुपए दाम लगाया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर there is a transaction which is happening between me and my subsidiary company, right? I price
them, right? And this is called as transfer pricing कि 100 रुपए की चीज है, मैंने 150 पे लगाई या 200 पे लगाई. There are rules and regulations to find this out और इसको कंट्रोल करने के लिए, बट स्टिल दोज आर नॉट सो इफेक्टिव. अभी तक बहुत ज्यादा तो इफेक्टिव नहीं है. पहली चीज बात तो आपकी ये हो गई. अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या कही गई कि जब आप इस तरीके का काम करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को टैक्सेस नहीं मिल पाते और वो ग्रो नहीं कर पाते, एंड दिस इज रियली बैड. तो इस तरीके के, और प्लस यूएस के बारे में एक चीज और यहाँ पे कही गई, दैट यूएस हैज नॉट साइंड द ओईसीडी एग्रीमेंट, जहां पे कंट्रीज फाइनेंशियल डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं. तो अब ये शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, बट इनके पास में एक लॉ है FATCA. उस लॉ के अंडर ये बाकी सबसे ले जरूर लेते हैं फाइनेंशियल डेटा, बट देते नहीं हैं. सो इन अ वे दे आर एक्टिंग एज अ टैक्स हेवन, एंड दिस इज समथिंग which should be stopped. So this article talks about it. Now let me show you some data over here. So corporate taxes जो हैं 2017 जो टैक्स कट्स दिए गए, इसमें 35 से 21% कर दिया गया यूएस कॉर्पोरेट टैक्सेशन. अभी ऑन एन एवरेज 25.8% टैक्सेस है. ठीक है, अब आप देखेंगे बाय 2022 कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो यूएस में 1.8% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं. इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? अब ये बाकी दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे? देखो, बहुत सारे ग्लोबल टैक्स हेवंस हैं. ग्लोबल टैक्स हेवंस का मतलब जहां पे जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड्स हो गया, यहाँ पे कम टैक्सेस दिए जाते हैं, एंड प्लस यहाँ पे ये लोग फाइनेंशियल डेटा को भी शेयर नहीं करते. यूके भी एक वर्स्ट ऑफेंडर है ग्लोबल टैक्स हेवंस में. जैसे इसके कुछ आइल्स हैं लाइक आइल ऑफ मैन, जर्सी, राइट, कैरिबियन आइलैंड्स एटसेट्रा, केमैन, बर्मुडा एटसेट्रा. यहाँ पे ये लोग टैक्सेस कम लेते हैं, एंड दे आर ऑफरिंग टैक्स हेवंस टू द कॉर्पोरेट्स, राइट? बट यूएस इज नॉट फार बिहाइंड. इंपॉर्टेंट रीजन इज इट मेंटेन्स द सीक्रेसी. कैसे मेंटेन करते हैं सीक्रेसी? इन्होंने ओईसीडी का फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन इन टैक्स मैटर ये एग्रीमेंट ज्वाइन ही नहीं किया. ठीक है, बट इनका एक एक्ट है यूएस फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, और वो कहता है कि यूएस सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स को कि अपनी सारी जो आपने अब्रॉड में असेट्स हैं उनको आप डिस्क्लोज करो. यहाँ पे मतलब कि इंफॉर्मेशन हम कुछ नहीं देंगे और आपसे इंफॉर्मेशन सारी ले लेंगे. सो दिस इज हाउ दे आर एक्टिंग एज अ टैक्स हेवन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूएस का फेडरल सिस्टम भी कुछ ऐसा है. देयर आर सम स्टेट्स इन यूएस लाइक नेवाडा, डेलावेयर and South Dakota, Wyoming, etc. ये भी these states are also acting as a tax heaven. तो अब कुछ कॉर्पोरेट लॉसेज हैं. अब इसके बाद में हमारे लिए जो एक इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है वो ये है, सी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस वो क्या करती हैं? टैक्स बर्डन कम कर देती हैं बाय शिफ्टिंग देयर प्रॉफिट्स टू लो टैक्स और नो टैक्स jurisdiction. And this shifting has led to, in the last decade, around $1 trillion. More than 1/3 of corporate profits have been transferred. And ultimately, this impacts the developing economy. ठीक है? Well, is there any city in India which is tax heaven for industries? Well, I do not have a data to collaborate that या फिर उसको पूरा ऐसे prove करने के लिए. So what you can do is, this is the question from Mitri. If anybody of you knows the answer for it, if there is any city which is tax heaven for industries, so you can say. But one thing I would like to add over here, there is an ease of doing business, that something we were taking very seriously in past 4 to 5 years, and you will see that the industries have concentrated in cities like Mumbai, right, in regions like Ahmedabad, right, and even if some of the industries, they are also concentrated in your Tamil Nadu region, right? Why is it so? Reason being, the laws have been made simpler over there. टैक्सेशन रिलेटेड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेशन दैट इज इम्पोज्ड इन इंडिया इज हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द टैक्सेशन रिमेन्स सेम ऑल ओवर द कंट्री, बट इट इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है. सो I don't think there is any kind of extra leverage that is given to the companies in any states. It's just about the formalities, how easy they can make, right? But still, if anybody of you have got an opinion regarding that, it is very welcomed in the comment section. ठीक है, चलिए next thing is
एक इंफॉर्मेशन है आपकी, सेबी प्रिस्क्राइब्स अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस. नाउ नंबर वन थिंग, what is market infrastructure institutions? So when I say this, I'm talking about stock exchanges, I'm talking about clearing corporations, I'm talking about depositories. सेबी ने यहाँ पर कहा है कि हम आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं. In these 3 months we want that your important officials or key managerial personas like the chief risk officer, your CEO, your CFO, these kind of important personals, they should be appointed through a process. अब ये प्रोसेस क्या होगी? स्टेप नंबर 1, देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी. बाहर की एक एक्सटर्नल एजेंसी वो आपके रिक्रूटमेंट्स करेगी. दे विल रिकमेंड. बाहर की एजेंसी ने रिकमेंड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक छोटी सी कमिटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं एनआरसी, नॉमिनेशन कमिटी, राइट. तो यहाँ पे ये नॉमिनेशन कमिटी, ये जो एक्सटर्नल एजेंसी ने जो आपको दिए हैं रिकमेंडेशंस, इनको अप्रूव करेगी. एंड फाइनली व्हेन इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एनआरसी, तब आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे विल अप्रूव द अपॉइंटमेंट. एंड दिस इज हाउ की मैनेजरियल पर्सनल्स should be appointed in market infrastructure institution. Why this move is important? This is important for increasing the governance. ठीक है, governance, जो corporate governance in stock exchanges, clearing corporation या depositories में होनी चाहिए, उसको improve करने के लिए ये step लिया गया है, right? So timeline has been given to you. Now just wait for a second. Again, 2 news items, quite important. Let's see this. So RBI seeks nod for overseas rupee lending by domestic banks to neighbors. अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए. First of all, over here, RBI बात कर रहा है that overseas branches of Indian banks generally what they do is they give the loans or any kind of funding to the Indian companies who are ऑपरेटिंग आउटसाइड. ठीक है, हम नॉर्मली ज्यादा देते नहीं. पहली चीज. दूसरी चीज, whenever these banks, suppose SBI has got a branch in London, ठीक है, तो इसकी जो लंदन ब्रांच है वो जो लोन देगी वो किस में देगी? फॉरेन करेंसी में. सो राइट नाउ व्हाट RBI is saying is कि फॉरेन करेंसी में मत आप लोन दीजिए, हमको आप अप्रूवल दे दीजिए कि जो हमारी बैंक्स की फॉरेन ब्रांचेस हैं वो रुपी में भी लोन दे सकें. ठीक है, रुपी में भी लोन दे सकें. अब इससे फायदा क्या होगा आगे चल के? फायदा ये हो जाएगा कि जो आपके व्हाट यू कैन से रुपी है, रुपी की वैल्यू जो है इंटरनेशनलाइज हो जाएगी, ट्रांजैक्शंस आपके बढ़ जाएंगे, राइट. इट वुड गिव द बैंक्स आल्सो एन एज. ज्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे आपके. अभी आप सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर्स को ही सर्व कर रहे हैं, फिर आप बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करने लग जाएंगे. सो दिस वाज द बेनिफिट. ओके, next we have the GSEC yields flat despite Rishikesh. See the answer in the comment section right now because I have to cover the news item, so I just cannot what you can say answer this. Anyway, I'll try to answer at the end of the video if you'll stay. GSEC yields end flat despite RBI's huge dividend to the government. See, RBI has given somewhere around 2.7 lakh crore, but market was expecting somewhere around 3.5 to 3. तो मार्केट तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा पैसा RBI गवर्नमेंट को देगा, बट इतना तो दिया नहीं. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ. अब यहाँ पे देखो, मार्केट वॉज थिंकिंग पॉजिटिवली, राइट, but this did not happen, so that is why there was no change in the yield. It remained around 6.25% only. ठीक है, उतना ही रहा. अब ये चेंज कब होता? अगर मार्केट की एस्पिरेशंस मैच हो जाती तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाती? कम हो जाती. बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाती तो यील्ड क्या है? बढ़ जाती. अभी मार्केट क्या सोच रहा है? कम पैसा दिया है आपने तो सरकार को और बोरो करना पड़ेगा ना, क्योंकि डेफिसिट तो है ही, आपने उतना पैसा दिया नहीं. सो दैट इज व्हाई मार्केट इज नॉट सो होपफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज. नाउ जस्ट फॉर अ सेकेंड, just a second. See, over here PIDs means your public interest directors. ठीक है, public interest directors के बारे में हम क्या बात करते हैं? See, when you are talking about the governing body का मतलब क्या होता है? Your board of directors who are managing the affairs on a day-to-day basis. PID is a public interest director
who is there on the governing body but watching over the interest of public. He is an independent director. Independent director का मतलब क्या होता है? He does not have so much of financial relationship with the company. Commercial relationship with the company is a strict no for independent director. He gets his sitting fees. आप आइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठिए, देखिए कि हम किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं. अगर वो डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, देन यू कैन वॉइस आउट योर ओपिनियन. सो दिस वाज द आंसर ऋषिकेश. ठीक है, because see, I have to cover the news really quickly na, so I do not have the time to go in the nitty-gritties, but there is a suggestion to you guys that if there is anything that you are not able to understand, just write in the comment section and we'll try to give you a detailed answer then and there. Now let's see the claims against personal guarantors in IBC cases jump 80% in financial year 25. Now what happens is insolvency and the bankruptcy code. ये क्या बात करता है कि अगर एक corporate, that is there is a company, अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पाए तो क्रेडिटर्स आपको कोर्ट ले जाएंगे अपना पैसा रिकवर करने के लिए. नाउ वी नो व्हेनेवर अ कंपनी स्टार्ट्स देयर आर सम पर्सनल गारंटर्स एज वेल. ये पर्सनल गारंटर कौन होते हैं? प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी शुरू की है. अगर आपने कंपनी शुरू की है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द डेट्स एज वेल. 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिटर्स को ये राइट दिया कि अगर कंपनी की जो रेजोल्यूशन प्रोसेस में आपको पैसा नहीं मिला तो आप पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ केस कर सकते हैं, प्रमोटर्स के खिलाफ आप केस कर दीजिए. तो ठीक है भाई, अब यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है कि जो केसेस हैं वो तो देखो केसेस 80% बढ़ गए पिछले फाइनेंशियल ईयर से, बट जो रिकवरी है वो सिर्फ 3% हुई, 2.49%. सो बेसिकली दिस आर्टिकल सजेस्ट कि भले ही आप पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ केस फाइल कर देंगे बट आपकी रिकवरी नहीं होगी. आप ये बात मान रहे हैं? आपकी रिकवरी होगी ही नहीं. तो इतनी लो रिकवरी के लिए अगर आप पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ ऐसे ही केस फाइल करते जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप कम हो जाएगी, लोग कंपनी ही शुरू नहीं करेंगे. Right, that is the problem. So over here they have said that we have to seek reforms in it. There should be a limit for the personal guarantors also to pay off the debt. कि ऐसा नहीं है कि 40 करोड़ का डेट है तो पर्सनल गारंटर की सारी एसेट बेच दो. कुछ लिमिट तो लगाओ कि 20 करोड़ लेंगे कि 15 करोड़ लेंगे, लाइकवाइज.